This evening was a very memorable evening. Chief Minister of West Bengal organized a meeting with the film fraternity about the birth centenary of Uttam Kumar, how we will celebrate. And it's a very interesting, very positive move. I really appreciate. And also, he announced the date of our next film festival from the 16th of December this year. Okay? In Bengal, colors have been changing for so many years. So I have no comment. পুরো পরিকল্পনা আজকে একটা ওনাদের প্ল্যানিং ছিল গভর্নমেন্টের একটা প্ল্যানিং ছিল অ্যাবাউট 100 ইয়ার্স অফ উত্তম কুমার এবং সেই প্ল্যানিংটা আমাদের জানালো এবং আমাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে সেটা ওনারা চেয়েছেন একটা ইমেল আইডি আছে সেখানে আমাদের দিতে হবে দ্যাটস না না কি ওনারা একটা ডিসিশন নিয়েছেন সো আমরা কি আরও কিছু যদি সাজেশন থাকে সেটা দেওয়ার জন্য आज उन्होंने हम लोग से पूछा है तो सोचने का टाइम लगेगा अभी आधा घंटा पहले ये ख़त्म हुआ है तो हो जाए उसके बाद हम लोग अगर कोई सजेशन आए तो हम लोग ईमेल कर सकते हैं इस साल दिसंबर में होने वाला है फिल्म फेस्टिवल He has a lot of plans and he has just come new Akshudin Bodha. So we all hope as an industry যে ওই প্ল্যানগুলো ফ্রুইশন নেবে খুব তাড়াতাড়ি বাট এর সব জিনিসটা সময় নেয় না they're so worried about colors there are other issues to be worried about. I must thank our Honorable Chief Minister and the INC Department of West Bengal because they have planned a year-long celebration for Mohanayak's birth centenary. And this celebration, as planned, it is just the initial planning, and they have also asked for suggestions from the eminent people from this industry. And we all know the kind of emotions we have for our Mohanayak Uttam Kumar. So, and this is the 100th year, so the whole city, the whole state, we are getting ready for the celebration, and it should look like a festival, a carnival, which gives the right amount of respect and love that we can show to our Mohanayak. আজকে এক্ষুনি সেটা নিয়ে এখন আলোচনা নেই যেহেতু সামনেই সেপ্টেম্বর মাসেই যেহেতু 3 থেকে 6 একটা অনুষ্ঠান মহানায়কের কথা মাথায় রেখে এবং 100 বছরের কথা মাথায় রেখে আপাতত ওটাকেই মূলত বলা হয়েছে তবে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডেটটা উনি বললেন যে 16 থেকে 23 ডিসেম্বর সেই সময় হবে এখনই সেটা নিয়ে আলোচনা হয়নি আবারও বলছি যেহেতু সামনেই 3রা থেকে 6ই সেপ্টেম্বর মূলত বার্থ সেন্টিনারি যে সেলিব্রেশনটা শুরু হচ্ছে এবং গোটা বছর ভরে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে এখন আপাতত ওটাতেই কনসেন্ট্রেট করা হচ্ছে তারপরে অবশ্যই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কথা হবে এবং যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকেও বারবার বলা হয়েছে যে গোটা ইন্ডাস্ট্রির শুধু অভিনেতা নন কলাকুশলী পরিচালক সকলেরই পার্টিসিপেশন এবং সাজেশন ওনারা চাইছে I am very happy with what our Honorable Chief Minister, what he said. I was very encouraged and I'm very happy. And I think we should all, despite all the differences which we have, I mean, everybody has their own sort of opinion. So I think they should come up with that and think of betterment of the film industry and everything instead of going back to what had happened before what had happened and the mudslinging and everything. I mean, just forgetting everything, we should start afresh. Absolutely. Language not only of the youth, language of everybody should change for the betterment of India, for us, for for humanism. I think everybody should mind, we should have mutual respect for each other. That is the main thing. We are becoming impatient. We are becoming absolutely, and especially because of social media, everything everybody has a voice and everybody can say whatever they want and that is the thing some good things are happening and some things are happening which are not very it's absolutely uncalled for. See, you are saying this, so we all know that this is not done.
We all know that. Despite that, we are doing it. So it shows their taste and their upbringing, whoever does anything that shows his or her upbringing, they are not just pulling themselves down, they're pulling their whole family, sort of down. So, they don't have any right to do that. So I think it's high time that we should have respect for each other, and we should really think of India, think of Bengal, I think, in a small way, we should start with our family, think of our family, think of our area, think of the place where we live in, think of Bengal, think of India, and think of the whole world. That is the only way to sort of be happy and peaceful. महानायक उत्तम कुमार के जन्मदिन को लेकर हम 100th ईयर को पालन कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और इतने अच्छे से बड़े धूमधाम करके हो रहा है। और इस तरह से प्लान किया गया है कि सरकार के तरफ से एक पीपीटी दिया गया है, एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है, सजेशंस भी सबको लेकिन सजेशन सबसे लिया जा रहा है। उसी के लिए ईमेल आईडी जो हमारे डॉक्टर मोहन है, सौमित्र मोहन है, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर, वैसे हम लोग तो सारे टीम में है ही, कमेटी में है, तो हम सब एकत्रित करके जिसका जो भी सजेशंस हो, साल भर के किस तरह से हम ऐसे प्रोग्राम्स को उत्तम कुमार, महानायक उत्तम कुमार के उनके काम करने का तरीका, उनके जो सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे वो ग्रो किए हैं, किस तरह से पूरे विश्व में एक बार और न्यू जनरेशन के पास भी उत्तम कुमार के बारे में उनको उत्साहित करना, वो सीखना जो इतने साल पहले वो अभिनय करके गए हैं, वो आज भी इतना प्रासंगिक है, इतना कंटेम्पररी काइंड ऑफ एक्टिंग है। सो उसके बारे में ही पूरा चर्चा हो रहे थे। और बहुत साल बाद हम सारे भिन्न मत, भिन्न राजनीतिक दल एकत्रित हुए हैं, जो आज ये मुख्यमंत्री ने किया है, इन्विटेशन सबने एक्सेप्ट किया है, एक नए रास्ता चलने का पूरा मार्ग हम लोग खोल पाए और सब इसमें बहुत खुश हैं। कोई भी समझ जाता है दिल्ली में जो हुआ था वो कितना मैनिपुलेटेड था और कितना बड़ा प्रोग्राम था। स्टूडेंट्स अगर ठीक से प्रोटेस्ट करना चाहे तो हमेशा करें, लेकिन उसके पीछे कोई एजेंडा रहे, वो एजेंडा कभी भी सही नहीं होगा देश के लिए। आज हम लोगों ने बहुत सारी बातों पे चर्चा की। आप लोग जानते हैं आने वाले सितंबर में 3 सितंबर को महानायक उत्तम कुमार का जो 100 साल पूरा होने वाला है, तो उनका हम लोग सेंटेनरी सेलिब्रेशन बनाएंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से सारे लोग आए थे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब लोग आए थे। हमारे ऑनरेबल सीएम थे, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी थे, ऑनरेबल मिथुन चक्रवर्ती थे, प्रसेनजीत थे और भी जितने बहुत ही नामी गिरामी जो एक्टर्स हैं वो लोग थे। सबके निर्देशन में बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई और हम लोगों ने एक पूरी रूपरेखा बनाई है जिससे महानायक को सम्मान देने के लिए हम लोग आने वाले सितंबर में 3, 4, 5, 6 एक बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई गई है। बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग जैसे एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत ढांचे हैं, जैसे एक उत्तम कुमार फिल्म सेंटर की बात हो रही है, वो हम लोग बनाएंगे। उत्तम को जो महानायक मंच है उसका हम लोग रेनोवेशन करेंगे। इसके अलावा 3, 4, 5, 6 को बहुत सारी डिटेल्ड योजनाएं बनाई गई हैं और उन सब पे काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो हम चाहते ही थे पहले सब एक हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्या है ये हम लोगों ने इस नज़र से पता कर लीजिए। हम लोग कोई विवाद नहीं चाहते, लेकिन अगर हम विवाद करेंगे, बदन घस के झगड़ा करेंगे, तो फिर सॉरी, इवन आई हैव टू कम डाउन दैट लेवल टू डू थिंग्स। अब हुआ तो नहीं सर, हमको भी बाद में निकाल दिया, हमको फिल्म फेस्टिवल में बुलाया नहीं। अब अभी मैं मॉस्को जा रहा हूँ, शायद बुलाएंगे, चिट्ठी आदान प्रदान कि ऑनर दे के हमको बुला रहे फिल्म फेस्टिवल में।
मॉस्को, लेकिन यहाँ बंगाल में हमको नहीं बुलाया। मैं बहुत ही छोटा आर्टिस्ट हूँ, इसलिए नहीं बुलाते थे, लेकिन बाहर से सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं जिनको हमारे बंगाल से कुछ लेना देना ही नहीं। बोलिए, हम कोई डरते नहीं, क्यों नहीं करना, कोई नहीं डरता, बोलो। देखिए, हम किसी का आचरण मानेंगे नहीं, हम सबको बुलाएंगे। जिसका आचरण खराब हो गया वो बाहर चले जाए, खत्म। देखिए, हमारे महानायक उत्तम कुमार हमारे इमोशंस हैं और उनका सेंटेनरी है, तो 3, 4, 5, 6 तो प्रोग्राम बन रहे हैं, और ऐसा प्रोग्राम जो आदमी को अच्छा लगे कि सेलिब्रेशन ऑफ उत्तम कुमार, एंड उसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साल भर कुछ करें, और उसके लिए आज इंडस्ट्री के बहुत सारे आदमी लोग आए थे। उन लोग भी कुछ आइडियाज़ देंगे ताकि हम साल भर कुछ ना कुछ करते रहें। बट हाँ, 3rd, 4th, 5th, 6th बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और उनके नाम पे एक जैसा हमारा ये नंदन है वैसा ही एक हब बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे एक उनके नाम पे भी होगा, और उसके साथ एक काइंड ऑफ ए प्लेस जहाँ पे बहुत सारा चीज़ हमारे बंगाल के, जो एक बार उसमें जाए तो उनको पता चले कि हमारे जो हिस्ट्री है 100 ईयर्स का वो रहे। तो ऐसा सब सोच में है। और फेस्टिवल का भी कोई डेट फिक्स हुआ? हाँ, 16 से 23 दिसंबर ऐसा कुछ आज अनाउंस किया ऑनरेबल सीएम ने। देखिए, माननीय उत्तम कुमार जी हमारा एक इमोशन है, बंगाल के इमोशन है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बंगाल की जो कल्चरल जो परंपरा है उसका एक बहुत बड़ा पिलर है। तो अब उनका जन्मदिन है 3 तारीख, और जन्म शतवर्ष, उसको मतलब यादगार करके रखने के लिए, और ये यादगार जो है हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए, लोगों को हमारे इतिहास के बारे में वाकिफ़ करने के लिए ये जो आयोजन किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके लिए हर कोई हम लोग बहुत खुश है, दिलो जान से खुश है। आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मतलब इतने बड़े हस्ती, उनका जन्मदिन वैसे नहीं मना सकता, मनाना भी नहीं चाहिए, पाप है। तो बस इस शतवर्ष में जो जन्मदिन उनका है वो यादगार करने के लिए 3, 4, 5, 6 ये हर कोई जगह जिसके संग उनका याद जुड़ा हुआ है, उनका काम जुड़ा हुआ है, बस उसका ही सेलिब्रेशन होगा। ऐसे होगा कि हमारी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से आज जुड़े हुए हर कोई लोग आए थे, हर किसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात रखे उससे खुश हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी उससे मिले और उनको बोले कि ये गवर्नमेंट आपको कुछ थोपना नहीं चाहता है। इस गवर्नमेंट की कल्चर एंड इंफॉर्मेशन ये जो विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, मंत्रक हैं, वो ऐसे अपना मन से कुछ बना के आपके सामने रखना नहीं चाहता है। हम लोग सोचेंगे, लेकिन मेन सजेशन आप लोगों की तरफ से आनी चाहिए। तो इसलिए डिपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल दिया है कि दोज आर इम्पोर्टेंट एंड एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का, उसको क्या लगता है कि कैसे इसको और आनंदजनक और मतलब हिस्टोरिकल बनाना चाहिए। ये सजेशन ये मतलब देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, तो ये किया। और फिल्म फेस्टिवल के अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेट बता दिए 16 से 23 तारीख। एक जो नेशनल फेस्टिवल का जो कैलेंडर होता है उसके संग जुड़ना पड़ता है, ईफी का फेस्टिवल रहता है, उसके संग सब कुछ मिला के। तो आज हर किसी के संग माननीय मुख्यमंत्री जी मिले, बात किए, सजेशंस शेयर किए, और वी आर रियली हैप्पी कि मतलब सब कुछ मिल के। और इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोल दी कि ये वो सरकार नहीं है जो सरकार आर्टिस्ट्स के ऊपर दबाव डालते थे, इस मंच पे जाना चाहिए, उस क्षेत्र से आपको कैंडिडेट होना ही पड़ेगा। ये सरकार कुछ नहीं बोलेंगे आपको, आपका जो मर्जी है वो आप करेंगे। तो ये सुनने के बाद ताली का बरसात हुआ कि जिन लोगों ने ये बात बोलने का कोशिश किया वो वही लोग हैं जो मतलब बिस्तर के चद्दर से बस स्टैंड की हर बास लाल कर दिए थे।
अब उनको ये सब कलर करने का जगह नहीं है। 2-3 जगह बचा था, वो लोग अपना घर में भी जो बंगाल में जो चावल फूटता है ना, जिसको भात बोलते हैं, वो भी लाल करने का कोशिश किया था, तो उन लोगों को घर से भगा दिया। तो कुछ कुछ दुखी ऐसे लोग हैं जिसको अपना ये जो दिमाग में घूमता हुआ कॉकरोच जो है, उस कॉकरोच को पालने की कुछ जगह चाहिए। झूठी बात बोलते हैं वो लोग, ये झूठ सुनते सुनते लोगों ने उसको विदा कर दिया। लोगों ने बोला उसको रेस्ट लेने के लिए, अब वो लोग रेस्ट नहीं ले रहे। झाड़ू पोछा तोली कलर लेके इधर उधर फिर से कलर करने का कोशिश कर रहे। तो वो लोग अगर जो शांत रहे, अगर वो लोग शांत रहे तो ये उनका शरीर और मानसिक जो चीज़ है उसके लिए बहुत सुखदायक होगा। देखिए, बंगाल की ये जो सरकार है, ये बंगाल के जनगण ने बनाया। बहुत दुख सहे वो जनगण, बहुत भरोसे के संग ये सरकार लेके आए बंगाल के जनगण। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये जो सरकार है उनका इमोशन का रिफ्लेक्शन है। इतना दुख सहे, इतना घर को उजाड़ा, इतना बेरहमी से मारा गया, लोगों का पेट और खून निकल गया, मतलब कोई भी हो, वो ये जो इमोशन जो है, ये सरकार का जो जिम्मेदारी है उससे बाहर नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। कोई भी पार्टी, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी स्थान, आपको ये इमोशन को रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए। ये पहले जैसे सरकार है नहीं कि ये अपना है वो पराया है, उसके लिए ये नियम ये कानून। अगर हम लोग कुछ इमोशनली या फॉर ऐसे कुछ मोमेंट आ गया, मैंने कुछ बोल दिया, अगर वो गलत है तो वो स्वीकारना चाहिए। और सरकार ने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर किसी का बात करने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, जो बंगाल के मिट्टी का इमोशन के संग जड़ित है।